This meeting is being recorded. Kishore bhai, can you hear me? Kishore bhai? He is not there today. Okay. We can hear you, Nisha Ben. Okay, thank you. Thank you, Nutan. Uh, shall we start the program? કચ્છી વિસા ઓસવાળ સ્થાનકવાસી જૈન મહાજન સંચાલિત માતૃશ્રી મણિબાઈ શિવજી દેવજી કન્યા કેળવણી ફંડ આયોજિત લક્ષ્ય પ્રોગ્રામ. લાસ્ટ સન્ડે આપણે જોયું કે એકદમ સુપર ડુપર હિટ સ્પીચ હતી મીનલબેનની અને વિધાઉટ આઈ થિંક 1.5 કલાક વિધાઉટ એની મને લાગે છે કંઈ બી થોડો બી 5 મિનિટનું બી ગેપ રાખ્યા વગર એમણે સતત તમને જે મોટિવેટ કર્યા અને જે નોલેજ આપ્યું અને મેન્ટરિંગ કર્યું ઇટ્સ ઇનક્રેડિબલ. કારણ કે મેં ઘણા બધા સેમિનાર્સ એટેન્ડ કર્યા છે પણ આવી સ્પીચ રિયલી એકદમ ફ્રોમ માય હાર્ટ આવી સ્પીચ મેં ક્યાંય સાંભળી નથી. તો ઇટ્સ આઈ થિંક બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર મીનલ એન્ડ આઈ વેલકમ ઓલ ટ્રસ્ટી અધિકારી હમણાં આપણી સાથે જોડાયા છે મહેન્દ્રભાઈ, વિનેશભાઈ મામણિયા, મહેન્દ્રભાઈ છેડા અને જેટલા બી ટ્રસ્ટી અધિકારી. હમણાં મારી પાસે આજે લેપટોપ નથી તો થોડુંક મોબાઈલમાંથી મને કારોબારીમાં જે બી જોડાયા છે એ બધાને હું વેલકમ કરું છું. અને આજે તો તમે હવે બીજા સેશનમાં તમને ઘણું બધું ખબર પડી ગઈ હશે કે કેવી રીતે આ એન્ટરપ્રેન્યોરનો જે વર્કશોપ છે એ સુપર ડુપર હિટ ગયા બી 2 વખત શું કામ ગયો છે બીકોઝ ઓફ ધ તમારા મેન્ટર મીનલ. इज क्रेडिट गोइंग टू हर ओनली. और कहते हैं ना कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ती गई रास्तों को देखकर, खुद ब खुद मंजिल करीब आती गई मेरा हौसला देखकर. यानी कि दोस्तों फासला मिटाना है और हौसला रखना है. तो આજે કોઈ બી ટાઈમ વેસ્ટ કર્યા વગર આપણે આ સેશન ચાલુ કરશું. પણ આ સેશન ચાલુ કર્યા પહેલા હું એક જ વાત કહીશ કે આ વખતે તો આપણી પાસે ઘણા બધા યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર જોઈન થયા છે. તો થોડું તમારું ફીડબેક અને તમે જો થોડુંક ઇન્ટરેક્ટિવ રહો વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં કે હમણાં બી, તો અમને બી ખબર પડશે કે તમને કેટલી મજા આવી છે આ પ્રોગ્રામથી અને આજે આગળ હજી આપણે શું કરી શકીએ છીએ એના માટે. એટલે થોડુંક ઇન્ટરેક્ટિવ રહો તો વધારે સારું. અને આજ સાથે હું સેશન ઓવર ટુ મીનલ. Thank you, Nisha Ben, for this wonderful introduction. Thank you for appreciating. મારો પાવર આ પાર્ટિસિપન્ટ્સ માંથી, આ લક્ષ્ય લીડર્સ માંથી આવે છે. ઘણા જણે મને પર્સનલી પણ પોતાના મોકલ્યા છે, પ્રતિભાવો મોકલ્યા છે, પોતાના અસાઇનમેન્ટ્સ મોકલ્યા છે. આઈ એમ હેપી કે એમનું જે માઇન્ડ ચર્નિંગ છે એ શરૂ થઈ ગયું છે. સો હેલો લક્ષ્ય લીડર્સ, વિલ વી સ્ટાર્ટ નાઉ? સો ટેલ મી હાઉ વોઝ યોર વીક? कैसा रहा ये वीक? कितना पावरफुल आपके लिए रहा? कितना माइंड चर्निंग रहा? क्या कुछ तो बदला? कुछ ऐसा लगा कि हाँ अब कुछ अलग करेंगे? ये एक मंथ जो नॉर्मल रूटीन से हम चलते आ रहे थे उससे कुछ अलग गया क्या? कहीं पे अगर आपने पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे कुछ भी थोड़ा सा भी अगर क्रैक किया हो तो आई रियली लाइक टू नो कि आपने अपने आवर्स जो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किए थे कि वर्किंग आवर्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, तो क्या आपने अपने वर्किंग आवर्स को देखने के बाद, उसकी वैल्यू देखने के बाद उसका बेटर यूज किया है ये वीक में? ये सब बातें मैं जानना चाहूंगी. तो प्लीज आप अपने असाइनमेंट्स हो या और भी कोई प्रतिभा हो तो प्लीज शेयर इट विथ मी. For me, it is very important to know what challenges you are going through and how together we can overcome those challenges. ये एक रूटीन जो वर्क है, ये जो रूटीन एक है जो हमारी थिंकिंग है, उसको ब्रेक करने के लिए आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
कहीं ना कहीं हम इतने कंफर्ट जोन में ओके हो जाते हैं, और हमारे पास हर फेलियर का एक रीजन होता है, और वो रीजनिंग की वजह से कहीं ना कहीं हम अपने माइंड को सेटिस्फाई कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हो, इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट आज तक नहीं बना जितना परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट लेके आप आए हो, योर ब्रेन, आउट ऑफ विच एवरीथिंग कम्स। इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस कोई भी कंप्यूटर बना है, उससे भी ज्यादा हमारा ब्रेन पावरफुल है। बट यही ब्रेन आपका फ्रेंड है कि आपका एनिमी है, वो डिसाइड करता है कि आप कितना सक्सेसफुल होंगे, कितने हैप्पी रहोगे अपनी लाइफ में। बिजनेस सक्सेस को लेके हम बहुत सारे डिसीजंस एक दिन में लेते हैं। टू बी प्रिसाइज, आई विल से वी टेक 35,000 डिसीजंस। इट्स सरप्राइजिंग, आई नो, बट एवरी डे हम छोटे बड़े 35,000 डिसीजंस लेते हैं, यही ब्रेन से। अगर आपका ब्रेन कभी बहुत राइट पोजीशन पे होता है, कभी बहुत रॉन्ग पोजीशन पे होता है, कभी ऐसा होता है कि यू फील एब्सोल्युटली amazing and charged and you want to convey so much things to your staff. some कभी कभी लगता है कि आज तो दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, और कभी पर्सनल कुछ रीजन की वजह से आप लो एनर्जी फील्ड में होते हो और आपके बहुत सारे डिसीजंस उस दिन लिए गए रॉन्ग होते हैं। सो टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ वी कैन मूव फ्रॉम अ नॉर्मल स्केलेबल, जो अभी अपना सस्टेनेबल बिजनेस चल रहा है, वेरी स्टडी बिजनेस, उसको स्केलेबिलिटी लेवल पे कैसे लेके जाए। सस्टेनेबिलिटी टू स्केलेबिलिटी की जर्नी में आज का सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज्यादातर समस्याएं व्यापारिक नहीं होती, व्यावहारिक होती है हमारी। मैं फिर से रिपीट करूंगी ये बात को, क्योंकि ये बात बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कि हमारी ज्यादातर समस्याएं व्यापारिक नहीं होती, व्यावहारिक होती है। हाउ वी थिंक, हाउ वी इंटरप्रेट, हाउ वी सी द सिचुएशन, हाउ वी डील विथ इट, व्हाट डिसीजन वी टेक, उसके ऊपर बहुत सारे बिजनेस ग्रोथ का डिपेंडेंस है। तो हम ये देखेंगे कि कौन सा राइट एटीट्यूड होना चाहिए बिजनेस में, और इसलिए हम अपना खुद का स्वॉट एनालिसिस और बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस करेंगे। ये एक बेस है जो हमें काफी रेगुलर बेस पे, आई विल से दैट एवरी ईयर और एवरी 3 ईयर आपको ये करते रहना चाहिए, आपका बिजनेस का स्वॉट एनालिसिस और खुद का भी। बिकॉज इसकी वजह से जो फास्ट मूविंग चेंजेस आ रहे हैं आपके सराउंडिंग में, उसके साथ आपकी कंपनी बेटर वे से ग्रो करेगी। स्वॉट एनालिसिस के बाद हम देखेंगे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। सो जो नए बिजनेसमैन हैं जो ये नहीं यूज कर रहे हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज काम डाउन रहिए। ये सिस्टम्स, प्रोसेसेस, MIS, इतने बड़े बड़े SOP के वर्ड से कंफ्यूज मत हो जाइए। इट्स वेरी वेरी सिंपल। जैसे हम कह रहे हैं कि हम प्रैक्टिकल MBA कर रहे हैं, मुझे बेचना आता है। सिंपल, हमको अपने प्रोडक्ट को बेस्ट प्राइस पे, बेस्ट कॉस्टिंग लेकर, बेस्ट प्रॉफिट लेके बेचना है। उससे कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इतनी सॉल्व करनी है कि हमारा कस्टमर ही हमारा प्रमोटर बन जाए और आगे हमें रेकमेंड करते रहें, और ऐसे ही एक स्टडी बिजनेस हम बनाएं। अब स्टडी बिजनेस के स्केलेबल जाने के लिए सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आर नेसेसरी। सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस के बारे में हम आगे जानेंगे। आज हमारे साथ कुछ नए पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, तो पहले हम लास्ट टाइम के जो सेशन है उसका लाइट रिवीजन करेंगे, ताकि आप सब जो नए हैं और आप सब जो पहले सेशन अटेंड कर चुके हैं, उनके माइंड में ये मेमोरी फिर से आ जाए और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाए। क्योंकि अगर आप वो चीज को फिर से रिवाइज नहीं करते तो आप सबको पता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में से उड़ जाती है बातें। सो मेमोरी को लॉन्ग टर्म करने के लिए कोई भी नई चीज को फिर से रिवाइज करना जरूरी है। सो हम फिर से लास्ट सेशन का रिवीजन करेंगे। स्लाइड्स प्लीज। नियति, हमने देखा कि हम कैसे अपनी लाइफ स्टोरीज बनाते हैं, बिजनेस स्टोरीज बनाते हैं, कैसे धीरे धीरे हम ऐसा सोचने लगते हैं कि हमारा बिजनेस ये ही काम कर रहा है और ये मेरी लाइफ की स्टोरी है। और ये स्टोरीज जो बिजनेस सक्सेस स्टोरीज है और जो आपकी पर्सनल स्टोरीज है, वो बदलने के लिए ये लक्ष्य प्रोग्राम हमने रखा है।
लक्ष्य एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्थानकवासी जैन महाजन की संचालित MMSD KKF इंस्टीट्यूट के जरा आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. This is me. If you feel anywhere that you are stuck or if you want to improve your business, this is me. You can always contact me. Next slide, please. Okay. So last session था हमारा turning your turnover. It is very important for you to realize that बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं. Please mute yourself, whoever. बड़ी जगह है मिले दादा. Okay, thank you. So turning your turnover. हम टर्निंग योर टर्नओवर की बात कर रहे थे कि कैसे हम टर्नओवर को धीरे धीरे चेंज करेंगे, कैसे हम अपनी बिजनेस स्टोरी को चेंज करेंगे. कभी शायद 5 साल के बाद आप कहोगे एक ऐसा भी दौर था जब हम ऐसे कोर्सेस अटेंड करते थे और हमारे छोटे छोटे स्ट्रगल्स चैलेंजेस शेयर किया करते थे. एंड नाउ एट दिस पोजीशन वी आर मेंटरिंग सो मेनी बिजनेसेस. सो आई वांट दैट ग्रोथ फॉर यू. फर्स्ट सबसे फॉरमोस्ट हमने बात की थी कि 1 घंटा अपने लिए आप रखिए. आराम से सिर्फ आपके ऊपर दुनिया भर की जिम्मेदारियां आ जाए, बिजनेस प्रॉब्लम्स आ जाए और आप फायर फाइटिंग में लग जाए, उससे पहले 1 घंटा रिलैक्स्ड 1 आवर ओनली फॉर बिजनेस ग्रोथ, न्यू प्लानिंग, न्यू वेज टू सॉल्व चैलेंजेस, ग्रोथ स्ट्रेटेजीज एंड एक्सपेंशन प्लानिंग. इसके अलावा आप बहुत कुछ ही 1 घंटे में कर सकते हैं जो आप एक बार रूटीन में आ जाने के बाद वो ब्रेक नहीं कर पाते. हमारी ज्यादातर आइडियाज, हमारे ज्यादातर ब्रेक थ्रू स्कोप यहाँ से आता है. जब हम रिलैक्स्ड होते हैं, जब कंप्लीटली हम खुद के साथ होते हैं, तब सबसे बेस्ट आइडियाज आते हैं और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो सोल्यूशन भी हमें ज्यादातर रिलैक्स टाइम में मिलता है. नेक्स्ट इज फाइंड योर आर्ली वैल्यू. बहुत लोगों ने ये किया हुआ था और बहुत लोगों को ये फर्स्ट टाइम उन्होंने रियलाइज किया कि आवरली वैल्यू जानना क्यों जरूरी है, क्यों हम अपने ही खुद के वर्किंग आवर को कैसे हम बेटर वे से यूज कर सकते हैं, उसी आवर को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं. ये जानने के लिए आपने आवरली वैल्यू निकाली, जिसके जो सिंपल फॉर्मूला थी हाउ मेनी आवर्स यू वर्क, और उसके अगेंस्ट उसके नीचे आपको लिखना था कि क्या आपकी इनकम है. ये डिवाइड करने पर आपको आपकी आवर्ली वैल्यू मिलती है, आपके वर्किंग आवर्स और आपकी इनकम. इट कैन बी वीकली, मंथली, बट आपको उसके हिसाब से अपने आवर्ली वैल्यू निकालनी थी. अब शायद आप वो आवर, हाफ एन आवर फ्रेंड्स के साथ गप्पे मारने में या अपने चेकिंग या गेम्स में करेंगे. नियति प्लीज म्यूट एवरीवन एल्स. आप अभी वेस्ट नहीं करेंगे अपने आवर्स. आर यू पेइंग योरसेल्फ सैलरी? ये बहुत जरूरी है. हम जब प्रॉफिट मार्जिन काउंटिंग करते हैं, जब हम प्रॉफिट निकालते हैं, तब बहुत बार हम भूल जाते हैं कि पहले हमें हमारी सैलरी निकालनी चाहिए. हम बिजनेस में हैं, बट अगर आप कहीं काम कर रहे होते तो आपके हर आवर की वैल्यू होती और उतनी सैलरी निकालने के बाद आपका बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है ये जानना बहुत जरूरी है. सो अपने आप को सैलरी पे करना भी उतना ही जरूरी है. अब ये आपके ऊपर है कि हर साल आप अपनी सैलरी कितना बढ़ा सकते हो और उसके लिए कितना जस्टिफाई कर सकते हो अपने एफर्ट्स को. सो दैट डिपेंड्स ऑन योर ग्रोथ, योर कंपनीज ग्रोथ, कि एज अ सीईओ, फाउंडर, जो भी आप नाम दो, आप अपने आप को कितनी सैलरी देना चाहोगे और उसमें बढ़ोतरी कैसे होगी. सो नाउ दैट कैन बी अगेन अ न्यू चैलेंज फॉर यू. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. जैसे ये 3 बात होती है इम्प्लीमेंटेशन. हम बहुत सारी आइडियाज के बारे में सोचते हैं, बट जब वो आइडियाज इम्प्लीमेंट करने की बारी आती हो तो हमें लगता है ये वक्त सही नहीं है, ये इंसान सही नहीं है जिसके साथ पार्टनरशिप या शिफ्ट की जाए या कोलैबोरेट किया जाए. कभी हमें ऐसा लगता है कि अभी बस ये कोरोना खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लॉन्च करेंगे ये नया प्रोडक्ट्स. सो इट इज नेवर द राइट टाइम, नेवर द राइट पर्सन, नेवर द राइट सर्कमस्टेंसेस, never the right kind of staff, never the right kind of cash flow. It is always हम लेटर पे छोड़ देते हैं और वो कभी नहीं आता, क्योंकि उसके एक के बाद दूसरी चैलेंजेस आती हैं. तो ये जो डिसीजन मेकिंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है,
वो अभी से शुरू होना चाहिए. Implement now. Make that call. Get up and make that call right now. Get up and tell that person you need to finish this before this time. Give deadlines, set deadlines for your own self also. तभी तो इम्प्लीमेंटेशन का, प्रोडक्टिविटी का एक नया कल्चर निर्माण होगा आपके माइंडसेट में भी और आपके स्टाफ के माइंडसेट में भी. ये बहुत जरूरी है कि आप अपने हर घंटे का बेस्ट यूज कीजिए और जो भी आइडियाज आपको आ रहे हैं उसके लिए एक टाइम पीरियड सेट कीजिए कि इतने टाइम में मुझे ये वो बात कंप्लीट करनी है, खत्म करनी है, या इसके ऊपर से एक नया डिसीजन लेना है. Implement now. That is very, very, very important. Make your family and business a place that talks about solutions. मैंने बहुत जगह पे देखा है, फैक्ट्रीज में जब मैं जाती हूँ ट्रेन करने के लिए एम्प्लॉइज को, तो मैं देखती हूँ दे टॉक अबाउट ओनली प्रॉब्लम्स. यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे ईगो इश्यूज होता है, इनके टसल्स होते हैं, बहुत स्लो प्रोडक्शन है. लॉट्स ऑफ टाइम आई सी लॉट्स ऑफ डिस्कशन ऑन प्रॉब्लम्स. I understand problems are part of your business और challenges आएंगे ही business में. But right now I want you to train your mind and train your staff also to think about solution. Whenever they share a problem, ask them to along with problem bring the solution. टेम्पो नहीं आया है, इसके बदले ये हो सकता है. आज कॉल उनको नहीं लग पाया है, नेटवर्क डाउन है, इट कैन बी एनीथिंग, इसके बदले में ये हो सकता है. सो दे विल बी अ थिंकर. In fact, you can apply this at your home also. Ask your kids to be a thinker. And along with problems, share solutions so that your whole family culture will be only talking on solutions. जब हम problems पे बातें करते हैं तो बहुत बार blame game हो जाती है. तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, या वो कहते हैं आपकी वजह से नहीं हुआ. So rather than discussing क्यों नहीं हुआ, let's discuss कैसे हो सकता है. क्यों के लिए हमारे पास हर बार उंगली उठाने के लिए एक इंसान होता है, बट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक टीम बन जाती है और अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं. सो फोकस ऑन सॉल्यूशन. दिस इज वेरी बेसिक एंड आई वांट ईच एंड एवरीवन टू थिंक. अपनी ही जिंदगी से आप सिर्फ कुछ प्रॉब्लम्स को देखोगे कि आप कितना प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हो. मोदी से लेके किसी भी इंसान तक आप हर टॉपिक पे डिस्कस करते हो. किसी की मौत से लेके मोदी तक हर टॉपिक पे मैं डिस्कशन सुनती हूँ. हालांकि ना मोदी को फर्क पड़ेगा, ना जो इंसान चला गया है उसको कोई फर्क पड़ेगा आपके डिस्कशन से, बट आप बहुत डिस्कस करते हो. स्टॉप वेस्टिंग योर प्रोडक्टिव टाइम. प्लीज स्टॉप वेस्टिंग योर प्रोडक्टिव टाइम. ओपिनियंस, your judgments can wait. When you are in your workspace, focus only on your work. Focus on what problem you are solving and for your client, how that will help. How your problem or your service will solve a problem for client and make them happy. Because every happy client matters. Every happy client will bring more customers. अगर आप अपने ही जो सेट किए हुए रूल्स है उसके हिसाब से आप देख रहे हैं कि कहीं पे क्लाइंट खुश नहीं है, तो यू नीड टू रिवाइज योर सर्टेन रूल्स. अगर आपको लग रहा है कि रूल्स को रिवाइज नहीं कर सकते, तो क्लाइंट को और वैल्यू एडिशन कैसे दे सकते हो, उसके बारे में आपको कांस्टेंट सोचना चाहिए. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इट इज ऑलवेज थिंक वन थिंग, हैप्पी कस्टमर इज अ मस्ट for any growth. To turn your turnover, you need to enhance customer experience. Constantly उनको better experience मिलना चाहिए. That wow, that feeling of they are special and it's worth their time and money that they approached you or that they are using your products. It should be always how you will help them. How you will help them and make that experience of connecting with you, your brand, your company pleasurable, memorable. क्योंकि हर एक हैप्पी क्लाइंट आपके लिए बहुत सारे कस्टमर्स लेके आता है और इसके लिए आपको ज्यादा स्पेंड नहीं करना होता है. मोस्टली अगर हम ऐसे ही मार्केटिंग और सेल्स के लिए कितना स्पेंड करते हैं, बट आपका जो ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग होता है उसकी वजह से आप बहुत ग्रोथ कर सकते हो. सो customer experience and customer fulfillment is very important. Your business
और ग्रोथ, बिजनेस और ग्रोथ इज नॉट जस्ट योर ग्रोथ. हमें हमेशा लगता है कि मैंने ग्रोथ किया बिजनेस का, मेरा फेलियर, मुझे ना कहा. It is not just about you. It is about a whole setup where your product or your company, be it even one person company, वो सिर्फ आपकी ग्रोथ, आपकी आइडेंटिटी, आपके रिस्पेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है. ये हर इंसिडेंट पूरी तरह से ये हर इंसिडेंट बहुत लोगों से जुड़ा है. आपकी लाइफस्टाइल, आपकी कंपनी, आपके कस्टमर का सेटिस्फेक्शन, ये बहुत बातों से जुड़ा हुआ है. सो प्लीज ऑलवेज फोकस कि सिर्फ आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि अगर आप किसी ने आपका प्रोडक्ट लेने से इनकार किया, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. सो इफ यू थिंक कि इसको समझ में नहीं आ रहा है मेरी बातें, या मेरा प्रोडक्ट तो बेस्ट है, इसको समझ में नहीं आया, या हाउ I will solve this problem, क्योंकि उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए. It is when we take the no personally, then it affects us and then we don't go to solution. We somewhere reach in between कि अब कैसे इसको solve किया जाए. Problems को solve करने के लिए कस्टमर के माइंड में जाना पड़ता है. वो क्यों ऐसा सोच रहा है, क्या ऐसा है जो राइट है और शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ. There is always a larger view. जब भी कभी ना आए या जब भी कभी आपके कोई बड़ी डील होते होते रह जाए, तो rather than focusing on कि आपकी प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया, फोकस ऑन कि हमने क्या उसकी कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी भी टाइम, अभी भी स्पेस नहीं दी है, क्या अभी भी वो डिससेटिस्फाइड है. और वो डिससेटिस्फेक्शन सिर्फ हर बार कॉस्ट का नहीं होता. मैंने बहुत लोगों को सुनते हैं, એને સસ્તું જોઈએ છે, બીજું કાઈ નથી, એને સસ્તું જોઈએ છે. It is not always about cost. Please, if you are giving them wow experience, they are ready to spend 150 or more than that for Starbucks experience. Please understand, हर बार प्रॉब्लम कॉस्टिंग की नहीं होती, हर बार प्रॉब्लम ये फजी कस्टमर है ऐसा नहीं होता. आपका फजी कस्टमर आपको सबसे ज्यादा आइडियाज दे सकता है और आपकी सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, क्योंकि वो आपको ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस दिखाएगा, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाएगा कि आपको रियलाइज होगा कि आपकी प्रोडक्ट में आप अभी और क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, आपकी पैकेजिंग में क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या ऐसा है जो बदलने से वो फजी से फजी कस्टमर भी हैप्पी हो जाएगा. Please focus on customers more than on your product or more than your self-respect, your identity, your everything about you. I mean myself. Your business is helping your country. Your business is helping your community. Focus there also. See every business as a large perspective. Next slide, please. आज का हमारा सेशन है सस्टेनेबिलिटी टू स्केलेबिलिटी. सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा लेवल है जहां पे हमारे कुछ फिक्स कस्टमर्स हो जाते हैं, जहां पे एक स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, एक कंप्लीटली 10%, 15%, 20% आराम से हमारी ग्रोथ हो रही है एवरी ईयर, एंड वी आर मेकिंग डिसेंट प्रॉफिट्स. हम अब थोड़े थोड़े सपने बड़ा करने के सोचते हैं, एक आध प्रोडक्ट ऐड करने के सोचते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में सोचते हैं. सस्टेनेबिलिटी एक ऐसा लेवल है जहां पे हमारे पास एक फिक्स्ड रेवेन्यू होता है. बट सस्टेनेबिलिटी स्टेज के अपने चैलेंजेस है. अगर आपका बिजनेस सस्टेनेबल बिजनेस भी सिर्फ 2 कस्टमर या 3 कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंट है, देन दैट इज अ रिस्क. क्योंकि सस्टेनेबल अगर आपका बिजनेस सिर्फ 2-3 कस्टमर्स के ऊपर है और उसमें से एक कस्टमर ने भी, ज्यादातर हमने बिजनेस फेलियर्स ऐसे देखे हैं. इफ यू आर टू मच डिपेंडेंट, और मतलब आपके बहुत सारा आपका पैसा अगर सिर्फ 1 या 2 कस्टमर से आ रहा है, तो उनको खुश रखना तो बहुत ही जरूरी है. बट वो खुशी करते करते कई बार ऐसा होता है कि एक सिर्फ कस्टमर चला जाता है और आपका पूरा बिजनेस हिल जाता है. सो सस्टेनेबिलिटी लेवल पे ये सब चैलेंजेस हम फेस करते हैं. सस्टेनेबिलिटी टू स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी जहां पे हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जहां पे हम 5%, 10%, 50% ग्रोथ की बात नहीं कर रहे हैं, हम मल्टीपल ऑफ 10 की बात कर रहे हैं. ऐसी ग्रोथ के लिए हमें सिंसियरली बहुत सारे सिस्टम्स, प्रोसेसेस ऐड करने होते हैं, ताकि आपके बिना भी आपकी
आपका बिजनेस, आपकी प्रोफेशनल जो ग्रोथ है वो अटके नहीं। ये सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इतने डिफिकल्ट नहीं होते जितने आपको फील होते हैं कि आपको लगता है मेरा सेटअप बहुत छोटा है, उसमें ये सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस जरूरी नहीं है, ऐसा आपका मानना हो सकता है। बट आज यही मिथ को हम ब्रेक करेंगे कि कैसे सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस तो छोटे से छोटे घर और छोटे से छोटे सेटअप से लेके बड़े से बड़े बिजनेस तक जरूरी है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम अभी एक ब्रेक थ्रू एंटरप्राइज देखेंगे कि कैसे छोटी सी बात से, कैसे सिर्फ छोटे से एरिया में, छोटे से वक्त में एक कंपनी ने कहां से कहां तक ग्रो किया। वो वीडियो हम देखेंगे और इसके बारे में इसके बाद डिस्कस करेंगे। दिस इज द जर्नी ऑफ फाल्गुनी नायर। आप सबको पता है ये नायका के फाउंडर है और इन्होंने कितने कम समय में अपनी कंपनी को कहां से ये कहां लेके गई। Just within 5 years. Who is soon going to be India's second richest woman. Everyone said she is mad, starting business at the age of 50. She was MD of Kotak Mahindra Bank and left 18 years of salaried job of 1 lakh rupees for a business which is really unknown to her, having lots of competition in it. In first 5 years, she is unable to earn any profit. She dispatches goods by herself. It is well said that Ardent creates history. 10 secrets of Falguni's success. 1. Trust on her gut feeling. 2. Meet customers by online shopping. 3. Place known brands first. 4. Then after launched her own brand. 5. Offers and discounts first. 6. Opening of 76 franchisee centers. 7. Joining and adding whole family in business. 8. Collaboration with others. 9. Grabbing funds at right time. 10. Play ads with these fundings. For these types of business tips, please like, share and subscribe. Falguni Nair, who is soon... हेलो। सो आपने ये मैजिक देखा, इतने कम समय में इतना बढ़िया मैजिक ये कर पाए हैं। इट इज, आपने उनकी एज, बहुत बार हम देखते हैं कि एज प्रॉब्लम्स फील होते हैं, बहुत बार हमको लगता है कैश फ्लो नहीं है, बहुत बार हमको लगता है सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इट इज नॉट अबाउट दैट। अब आप देख रहे हो कि कैसे एक 5 से 7 साल में अपनी मेहनत से, अपने सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी से उन्होंने अपने छोटे बिजनेस को ये लेवल तक पहुंचाया। सेकेंड रिचेस्ट वुमेन। सो फॉर यू ऑल्सो इट इज पॉसिबल। बट जैसे मैंने कहा, बहुत सारी हमारी समस्याएं व्यापारिक नहीं व्यावहारिक होती है, और व्यावहारिक समस्याएं जनरली आती है अपने एटीट्यूड से। एटीट्यूड चेक करने के लिए स्वॉट एनालिसिस बहुत जरूरी है। आप अभी भी आप अपने पेज के साथ, अभी जो भी आपके पास बुक या पेन है, फटाफट आप SWOT 4 एरिया में लिख लीजिए। पहले आप अपने पर्सनल, एक पेज पे आप अपनी पर्सनल करेंगे और दूसरे पेज पे आप बिजनेस की लिखेंगे। जितने भी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आप देख रहे हैं अपने पर्सनल लेवल पे और बिजनेस लेवल पे, आप दोनों लिखेंगे। अब ये दोनों मैं क्यों लिखवा रही हूँ? क्योंकि बहुत बार आपकी पर्सनल स्ट्रेंथ या वीकनेस आपके बिजनेस स्ट्रेंथ या वीकनेस बन जाती है। अगर समझिए आपके पास कैश फ्लो अच्छा है तो वो आपके बिजनेस की स्ट्रेंथ है। यही स्ट्रेंथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैश फ्लो तो है बट उसको फोकस कहाँ करना है हमें समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों के पास एक प्लेस पड़ी होती है, सो दैट इज बिजनेस स्ट्रेंथ कि यू हैव अ शॉप रेडी, एक या 2 जगह है आपके पास, बट उस जगह का बेस्ट यूज कैसे करना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है लोग है ना अपनी बिजनेस भी ऐसे प्लान करते हैं, यहाँ पे जगह पड़ी है तो यहाँ पे ये बिजनेस शुरू कर देते हैं। थिंक फ्रॉम द एंड, व्हाट डू यू वांट एज अ बिजनेस, आप क्या अचीव करने चाहते हो। अगर ये बिजनेस स्ट्रेंथ है तो ये बिजनेस वीकनेस भी बन सकती है। अगर सिर्फ आपके पास जगह पड़ी है और आपने वहां पे वो शॉप खोल ली वहां पे वो कस्टमर का फुटफॉल आना ही नहीं है, जिस तरह की आपकी जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो वहां पे वो जगह वो प्रोडक्ट के लिए राइट नहीं है, बट जस्ट बिकॉज आपके पास जगह पड़ी थी तो आपने वहां पे वो बिजनेस शुरू कर दिया। एंड आप अपनी ब्रांड बिल्ड करो, वहां पे फुटफॉल शुरू हो, उसके बीच का गैप अगेन डिसाइड करेगा कि आप कैसे इसके लिए स्ट्रेटेजाइज करते हो।
तो ऐसे बहुत बार होता है कि हमारी बिजनेस स्ट्रेंथ ही हमारी बिजनेस वीकनेस होती है, या हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ या वीकनेस हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। तो अभी मैं चाहूंगी कि आप आराम से अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स लिखें। अभी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी कोरोना बहुत लोगों के लिए, लॉकडाउन बहुत लोगों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बना। कितने सारे नए बिजनेसेस को हमने ग्रो होते हुए देखा। ऑनलाइन बिजनेस को एक नया बूम मिला, ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस, कितने सारे नए बिजनेस, डेटा मार्केटिंग, कितना सब हमने देखा जो बहुत बड़े ग्रोथ लेवल पे आया, उनको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। सेम अपॉर्चुनिटी किसी के लिए थ्रेट बन गई, बहुत लोगों के बिजनेस को बहुत बुरी तरह से मार मिली है यही लॉकडाउन में। So a business opportunity can be a good opportunity for someone and threat for someone. टेक्नोलॉजी, अगर आप टेक्नोलॉजी के साथ कंफर्टेबल है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है, और अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो वो आपके लिए थ्रेट है। सो ऐसा नहीं होता कि कोई प्रॉब्लम गलत है या कोई प्रोडक्ट गलत है या लोग गलत है या वक्त गलत है। इट इज हाउ यू सी, आपको उसमें से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करने का आपने डिसाइड किया और कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्व किया। बहुत बार हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं कि नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है मतलब ये तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास फैमिली सपोर्ट नहीं है या घर में 2 लोग नहीं है इसलिए ये तो नहीं हो सकता, मेरी तो टीम ही नहीं है, मुझे ही अकेले सब संभालना है तो ये नहीं हो सकता। ये जो हम सारे डिसीजंस अपने माइंड में फिक्स कर दे जाते हैं, उसको ही हम अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, स्ट्रेंथ या वीकनेस के जोन में हम खुद ही रख लेते हैं, और हमारी ही ये सोच हमारे बिजनेस के लिए वीकनेस बन जाती है, बहुत बड़ी वीकनेस। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे बिजनेस स्ट्रेंथ, हमारे पास कैश फ्लो हो सकता है, हमारे पास जगह हो सकती है, एक अच्छी मोटिवेटेड टीम हो सकती है। सेम हमारी बिजनेस वीकनेस हो सकती है कि हम टेक्नोलॉजिकली उतने साउंड नहीं है, हमारे पास खुद की जगह नहीं है, हम रेंट ले रहे हैं तो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। हमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं कि कंपटीटर्स बाजू में ही सेम शॉप खोल लेते हैं अगेन, और या आपके सेम प्रोफेशन में बहुत लोग अचानक से आ गए, अगेन यू आर गोइंग टू हैव प्रॉब्लम। So these are business, competition, technology problems और पर्सनल। अभी आप पर्सनल भी लिखिएगा SWOT एनालिसिस, अभी जितने लिख सकते हैं लिखिए, इसके बाद आप जब फ्री हो सेशन के बाद भी आप लिखिए। ये आज की ये जो एक्सरसाइज है ये आपके लिए बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम करेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा पेशेंस लेवल अगर कम है, ये अगर हमारी वीकनेस है तो ये बिजनेस वीकनेस बनेगी, क्योंकि हम टीम अच्छी नहीं बना पाएंगे, हम अपने स्टाफ के ऊपर अननेसेसरी प्रेशर डालेंगे, अपने एटीट्यूड का, अपने गुस्से का, और वो पेशेंस लेवल कम होने की वजह से हमारी अच्छी टीम नहीं बनेगी या हमारे पास एम्प्लॉय टिकेंगे नहीं। तो ऐसे हमारी जो पर्सनल वीकनेस होती है वो भी हमारे बिजनेस की वीकनेस बन जाती है। कभी कभी हमारी पर्सनल जो स्ट्रेंथ होती है वो हमें अब तक बिजनेस में सक्सेस दिलाती रहती है, बट एट कुछ एक ऐसा वक्त आता है जब हम अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ को या अपनी खुद की स्ट्रेंथ को इतना सुपीरियर मानने लगते हैं कि इसके अलावा हम नहीं देख सकते, क्योंकि हमने पता चल गया A+B किया, हमें C मिला और ऐसे ग्रोथ मिली है अब तक। तो जब नए लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनको पता है A+B+C भी कर सकते हैं और उससे भी ग्रोथ मिलती है, बट वो C को ऐड करने के लिए हम तैयार नहीं होते। और यहाँ पे मैंने देखा है बहुत बार जब न्यू ब्लड, नया जनरेशन जब हमारे पुराने बिजनेस में जुड़ता है तब यही बहुत बड़ी थ्रेट हो जाती है बिजनेस के लिए, क्योंकि 2 अलग तरह के लोग जुड़ते हैं, 2 अलग माइंडसेट के लोग जुड़ते हैं। इनके पास एंथुसियाज्म है पर एक्सपीरियंस नहीं है, इनके पास एक्सपीरियंस है बट नई चीजों को अपनाने की, नई चीजों को अलाउ करने की एक स्ट्रेंथ ये खो देते हैं। एक पेशेंस लेवल जो चाहिए, एक जो गैप चाहिए कि हाँ चलो इनको एक्सपेरिमेंट करने दो, फेलियर होता है कि सक्सेस, वो हम खो देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट के बारे में लिख सकते हैं। अगर आपके साथ आपके
बाद आपके नए लोग जुड़ रहे हैं, इट कैन बी इवन योर स्टाफ। बहुत लोगों को मैंने देखा है वो स्टाफ की नहीं सुनते। अगर कोई प्रॉब्लम स्टाफ आपके पास लेके आ रहा है तो उसे समझने की कोशिश करना जरूरी है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम कंटिन्यू होगी, आगे जाके बड़ी होगी और आपका ज्यादा टाइम लेगी, आप फायर फाइटिंग में ही लगे रहेंगे। यू नीड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। अगर वो एटीट्यूड प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम अलग तरह की है, शायद आपने राइट बंदा नहीं चुना है राइट जॉब के लिए। ये थर्ड सेशन में आएगा कि कैसे आप अपने रिसोर्सेज को अलग तरीके से टैकल करके उसका अपना जो छोटे छोटे चैलेंजेस है उसको बेटर कर सकते हैं। बट आज के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी बिजनेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को लिखें और अपनी खुद की। बहुत बार होता है कि लोग नो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। अगर किसी कस्टमर ने नो कहा तो उनको प्रॉब्लम होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को, अपने फ्रेंड्स को पैसा देते वक्त वो नो नहीं बोल सकते और उनको पैसा दे देते हैं और फिर वो पैसा निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये आपकी बिजनेस वीकनेस बन सकती है, आपकी एक जो नेचर है। ऐसी कई सारी बातें हैं। कभी कभी रेजिलियंस, मैं चाहूंगी कि हर बिजनेसमैन के पास ये एक स्ट्रेंथ जरूर होनी चाहिए, रेजिलियंस। हर चीज पे डटे रहने का एक जज्बा, हर प्रॉब्लम पे, हर फेलियर पे टिके रहने का एक जज्बा। जब काफी लंबे समय तक भी ग्रोथ ना दिखे तो भी वो ग्रोथ के लिए सतत कुछ ना कुछ बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहना, थकना नहीं, ये एक रेजिलियंस बहुत बड़ा एक बिजनेस स्ट्रेंथ मैं चाहूंगी कि हर बिजनेसमैन में हो। और आप कैसे ये रेजिलियंस डेवलप करोगे उसके बारे में भी आप सोचिए कि कैसे आप लार्जर पर्सपेक्टिव पे देख पाओ, कैसे आप बिना थके अपने ही बिजनेस में कॉन्स्टेंटली नए एडिशंस, वैल्यू एडिशंस करते रहो। वैल्यू एडिशंस बहुत छोटे से छोटे हो सकते हैं, बहुत बड़े से बड़े हो सकते हैं। गिविंग अ डायरी, a planner to each and every employee, even that much small thing can transform your business. बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रेंथ्स मिलके बिजनेस को ग्रो करते हैं। तो आप अपनी फेलियर में से कैसे आप सीख सकते हो, आप अपनी कैपेबिलिटीज कैसे बढ़ा रहे हो, आप खुद की भी और अपने स्टाफ की कैपेबिलिटीज, ट्रेनिंग पे आप कितना काम कर रहे हो, ये सब बातें जानना बहुत जरूरी है। आपका अगर पेशेंस लेवल कम है तो आप शायद रिसर्च में भी स्लो होंगे, रिसर्च भी कम करते होंगे। आपके बिजनेस के लिए रिसर्च बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आप हर चीज को, अपने बिजनेस को पूरा A to Z तक पूरा समझ लीजिए, जितना ज्यादा नॉलेज आप कलेक्ट कर सकते हो अपने बारे में, ये कीजिए, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। कुछ मैंने अभी इंसिडेंट्स बताए हैं, कुछ मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं। इट कैन बी गुडविल, कम्युनिकेशन, योर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट मनी, ये सारी बिजनेस स्ट्रेंथ्स है। ये सारी चीजें किसी के लिए वीकनेस भी हो सकती है। कोई इतने पैसे नहीं डाल सकते, किसी के पास टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं है, किसी की ब्रांड ही नहीं है, उनके पास अभी गुडविल बनाई हुई नहीं है, कोई परफेक्ट वैल्यूएशन नहीं है। तो ये सब बातें आपके लिए वीकनेस बन सकती है। और जैसे मैंने कहा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हमेशा चेंज होती रहेगी, ये कुछ बात कांस्टेंट नहीं रहेगी। कब कौन सी अपॉर्चुनिटी को आप टैप कर रहे हो, कब किस लोगों के साथ आप जुड़ रहे हो, राइट लोगों के साथ जुड़ना सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और ये बहुत बार हम रुक जाते हैं क्योंकि हमें नहीं आता, हमें लगता है सामने वाला तो हमें खा जाएगा, तो हम लोगों के साथ जुड़ते नहीं हैं और हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होता है। ये मैंने बहुत बार देखा है कि कभी कोई अपॉर्चुनिटी आती भी है तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा नाक दबा रहा है या ये हमें रोक रहा है, ये तो अपनी ही चला रहा है, और हम उन लोगों के साथ जुड़ नहीं पाते क्योंकि एटीट्यूड प्रॉब्लम, हमें लगता है कि एटीट्यूड वाइज हम उनसे नहीं जुड़ रहे, थॉट प्रोसेस हमारे मैच नहीं हो रहे, और ऐसे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हम खो देते हैं। When we are professional and when our everything is on paper and clear, जितनी क्लैरिटी के साथ हम काम करते हैं वैसे ही कोलैबोरेशंस इजी होते जाते हैं
और ग्रोथ के लिए ये करना बहुत जरूरी है। ब्रांड बिल्डिंग के लिए भी क्रॉस बातें करना एक दूसरे के लिए ये बहुत जरूरी है। तो आपका मर्जर कौन से लेवल पे है, बट वो बहुत आपको स्ट्रेंथ दे सकता है। अगर आपकी कोई वीकनेस है, अगर आप ऐसे किसी बिजनेस के साथ जुड़ रहे हैं जो उनकी स्ट्रेंथ है, तो आप टुगेदर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप सिर्फ प्रोडक्शन कर रहे हैं और किसी के पास एक बहुत बड़ी चेन है जहां पे आपका प्रोडक्शन कॉन्स्टेंटली घूम सकता है, तो ये एक बहुत बड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है जुड़ने का। सो अपने माइंड को अगर खुला रख के आज आप देखेंगे कि कौन सी बिजनेस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आप बदलना चाहते हैं, तो शायद आज आप बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर लेंगे। आराम से सोचिएगा, अपने ईगो को, अपने जो पुरानी थिंकिंग है उसको साइड में रख के सोचिएगा। जब भी आप ये लिखे तब अपने नए, जब आप बहुत एंथू थे, जब आप बहुत नए नए जुड़े थे बिजनेस में, तब कितनी रेडीनेस थी आपकी हर चीज को अपनाने की। वो रेडीनेस के साथ आप ये लिखिएगा एंड देन यू विल सी हाउ थिंग्स विल चेंज। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बट आई वांट एवरीवन टू गो थ्रू दिस स्केलेबिलिटी। अब हम आते हैं कि हमें हर किसी को स्केलेबिलिटी लेवल पे जाना है, हर किसी को अपना प्रॉफिट बड़ा करना है। अब बात क्या है, ये है रेवेन्यू, ये है कॉस्ट। यहाँ पे जो बचता है वो है आपका प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है अच्छे से तो प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ते हैं, बट अगर रेवेन्यू के साथ आपकी कॉस्ट भी बढ़ रही है तो प्रॉफिट वही रहा, रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट प्रॉफिट आपका वही रहा क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही है। जैसे अगर आपका एक क्लासेस चल रहे थे और आपने दूसरे क्लासेस शुरू किए, अगर आपको उसके लिए बहुत सारे टीचर्स रखने पड़ रहे हैं, नई जगह रेंट पे लेनी है, तो आपके फिर से कॉस्ट बढ़ रही है, रेवेन्यू बढ़ रहा है पर साथ में कॉस्ट बढ़ रही है, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बड़ा नहीं हो रहा। दो इसको आप और स्केलेबल बना सकते हैं बट अभी नहीं बढ़ रहा है। बट आप बहुत सारी ऐसी बातें देखोगे, जैसे एक टीचर है फिलहाल 10 स्टूडेंट को पढ़ा रही है, अगर सेम टीचर 50 स्टूडेंट को भी पढ़ाए तो एक ही घंटा जा रहा है और एक ही क्लासरूम लग रहा है या एक ही कंप्यूटर लग रहा है। अगेन हियर इफ यू इंक्रीज योर कस्टमर बेस तो प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं। तो आपको ये जो कॉस्ट और रेवेन्यू का मॉडल है उसको आप इतना आपके जो भी रिसोर्स इतना बेहतर कॉस्ट सेविंग बना पा रहे हैं और वही कॉस्ट में से कितना ज्यादा, जैसे वो गन्ने वाले को आप देखा होगा, वो गन्ना डालता है, दूसरी तरफ से निकालता है, फिर से डालता है, फिर से निकालता है। इट इज ऑल अबाउट हाउ बेस्ट यू आर यूजिंग ऑल योर रिसोर्सेस। भले बाद में कुछ कम आ रहा है बट वो जितना भी जूस निकला वो आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। So every time when you are going through scalability, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपका प्रॉफिट मार्जिन बड़ा करने के लिए आपको कॉस्ट में सेव करना है और रेवेन्यू को बढ़ाना है। कॉस्ट भी बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, तो आप कहीं पे ऐसे स्टेज पे हो कि बिजनेस तो बड़ा हो रहा है बट प्रॉफिट उतने का उतना रहा या सिर्फ थोड़ा बढ़ा, स्केलेबिलिटी लेवल पे नहीं बढ़ा, सस्टेनेबिलिटी लेवल पे ही बढ़ा। सो ये एक बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Why we need systems and processes? जैसे मैंने कहा कि systems and processes से बिल्कुल डरना नहीं है। Systems and processes इतने difficult नहीं है जितने हमें लगते हैं, बट सबसे पहले तो हम ये MBA कर ही क्यों रहे हैं, ये रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको सस्टेनेबिलिटी लेवल पे आते हैं। तो अब क्या होते हैं ये फायर फाइटिंग, जैसे हम स्टाफ को इंडक्शन ट्रेनिंग करते हैं, फिर एक बार सिखाने के बाद वो सेम प्रॉब्लम को रिपीट करते हैं, सेम मिस्टेक्स करते हैं, हम फिर से सिखाते हैं, फिर से वो मिस्टेक करते हैं, हम फिर से सिखाते हैं, और ये एक पेड एजुकेशनल प्रोग्राम बन जाता है जहां पे आप उनको पेमेंट भी दे रहे हो और सिखा भी रहे हो। बहुत सालों तक आप सिखाते ही जाते हो, सिखाते ही जाते हो। ओके, माय वॉइस इज ओके, I think it is network issue। बहुत बार देख हमारा एजुकेशनल
प्रोग्राम बन जाता है और हम कॉन्स्टेंटली सिखाते ही जाते हो। हम अपने ही स्टाफ के पीछे इतना टाइम डाल देते हैं, अपनी ही डिस्पैच या जो ट्रांसपोर्ट है उसको सॉल्व करने में, अपने ही प्रोडक्शन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इतना टाइम दे देते हैं कि वो फायर फाइटिंग की वजह से हम अपनी ग्रोथ के प्लान पर ध्यान नहीं दे पाते। क्यों नहीं हो रहा है? तो ये पेड एजुकेशनल सिस्टम बन जाता है। कभी कभी जब हम सस्टेनेबिलिटी लेवल पे होते हैं तो हम बहुत बार जुगाड़ से काम कर लेते हैं। अभी तो ये हो रहा है ना प्रॉब्लम सॉल्व, चलो अभी ऐसे कर दो। कोई भी किसी चीज का भी प्रॉब्लम आया, अच्छा अभी ऐसे सॉल्व कर दो, बाद में देखेंगे। अगेन ये प्रॉब्लम आपके सामने फिर से आने ही वाला है। अगर एक बार आपने जुगाड़ लगा लिया, दूसरी बार जुगाड़ लगा लिया, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला जब तक आप जड़ में जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करते। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जुगाड़ भी तभी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, बट आगे जाके वो फिर से खड़ा ही होता है आपके सर के ऊपर प्रॉब्लम। ओरल इंस्ट्रक्शंस और डिसऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन, ये हमने बहुत बार देखा है। उसको जाके ये बोल देना, किसको जाके क्या बोल देना, वहां पे वो शेल्फ पे जो लाल कलर की फाइल पड़ी है वो लेके आओ, वो शेल्फ पे लाल कलर की फाइल, ओरल इंस्ट्रक्शन। क्योंकि आपको पता है आपका स्टाफ पढ़ा लिखा नहीं है, आप जो इंस्ट्रक्शंस दोगे वो लेवल पे कितना समझ पा रहा है पता नहीं है। बहुत डिसऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन होता है, एक बोलता है उसने किया, फिर लास्ट में आता है पता नहीं किसने किया। इतना डिसऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन अगर हमें सॉल्व करना है तो सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बहुत जरूरी है, ताकि हम अकाउंटेबल पर्सन के साथ बात कर पाए, ना कि पूरी सिस्टम के थ्रू जाए कि भाई प्रॉब्लम किसका है। बहुत बार ऐसा होता है, दो लोग होते हैं अगर स्टाफ में, एक लेट आता है तो दूसरा भी बोलता है, वो लेट आता है तब आप उसको नहीं बोलते, मुझे बोलते हो। एंड सेम विथ किड्स, जैसे घर में आप देखते हो ना, एक किड बोलता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, आप मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, पापा मुझे प्यार करते हैं पर मम्मी नहीं करती। सो इट इज समवेयर कि बहुत सारे इरेग्युलरिटीज आप अपने बिजनेस में देखते जाते हो। ये इरेग्युलरिटीज और ये वेरिएबल्स क्यों आ रहे हैं? ये वेरिएबल्स आते हैं क्योंकि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस ओरल होती हैं, इंडक्शन ट्रेनिंग में ऑन पेपर वो पढ़ते नहीं है, और फिर कॉन्स्टेंटली आपको इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, आपको या आपके नीचे के स्टाफ को। डिसऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन, आपने क्लाइंट से बात की, हाँ ठीक है मैं माल भेज रही हूँ या भेज रहा हूँ, कि उन तक वो कंफर्मेशन गया कि नहीं, नीचे स्टाफ तक वो कितना पेनिट्रेट हुआ, आपने यहाँ से कौन से दिन पे वो आपका माल बन के वापस आएगा। अगर ये सारी बातें सिस्टमैटिक नहीं है तो फिर आपको क्लाइंट को बोलना पड़ेगा, हाँ बस नेक्स्ट वीक आपू छू ने तमने माल पाको नेक्स्ट वीक तो पाको, और फिर आप नीचे बोल रहे हो अरे क्या हुआ, वो माल का बना भी है कि नहीं, क्या हुआ जहां पे परचेस ऑर्डर देना था वहां पे आया कि नहीं। सो दिस इज वेयर योर कस्टमर्स विल ओके, मतलब कस्टमर्स भी ऐसे हैं कि अगर उनको जरूरत है तो 2-4 बार तो चला लेंगे, बट हर बार अगर आप उनको उल्लू बना रहे हो या उनको राइट कम्युनिकेशन नहीं दे रहे हो तो कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फेक्शन लॉन्ग टर्म में वो आपसे आपके बदले का बेटर ऑप्शन ढूंढ ही लेंगे। तभी तो आपने संभाल लिया, तभी तो आपने कुछ भी करके उनको मना लिया, बट ये आगे जाके लॉयल कस्टमर नहीं बनेगा। लॉयल भी अगर है बिकॉज ऑफ उनके कोई प्रॉब्लम, वो बेटर वेंडर अगर आपके बदले नहीं ढूंढ पाए और आपको कंटिन्यू भी किया है तो आपका प्रमोटर तो कभी नहीं बनेगा, कभी किसी और को नहीं बोलेगा कि यहाँ पे जाओ, ये तो पक्का आपको इसकी जो बात है वो पक्की है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ये बहुत बार मैंने देखा है, इतने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होते हैं स्टाफ से, कस्टमर्स से, कि वो आपकी प्रॉब्लम समझेंगे। वो क्यों समझेंगे? उनका सिंपल प्रॉब्लम है, मुझे ये टाइम पे ये मटेरियल ये प्राइस में चाहिए, आपके लिए रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया है, आपके लिए स्टाफ नहीं आ रहा है, आपके लिए टेम्पो नहीं है, आपके लिए ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम है, आपके लिए प्रोक्यूरमेंट प्रॉब्लम है, वो सब आप उसको पूरी इतनी महाभारत सुनाएंगे, उससे उसका क्या लेना देना। अगर आपके पास स्टाफ कम है, उससे ये जो आप बातें करते हैं कस्टमर से, उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि वो आपकी
प्रॉब्लम समझेंगे तो आप गलत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। उनको उनकी प्रोडक्ट चाहिए, उनको अच्छा मोमेंट चाहिए, उनको अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उनको आपके एक्सक्यूजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कितने भी जेन्युइन क्यों ना हो आपके एक्सक्यूजेस, बट उनके लिए उसका कोई मायना नहीं है। तो आप कितना भी बोलो कि भाई स्टाफ ही नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं, कुछ देर के लिए वो समझेंगे, बट आपसे अगर कोई बेटर स्पीडी बेटर ऑप्शन उनको मिलता है तो क्यों ना वो शिफ्ट करें। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, ना अपने स्टाफ से ना अपने कस्टमर्स से, क्योंकि ये और अपने आप से भी, बहुत लोग अपने आप से भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। कल तो मैं जाके ये कर दूंगी, वो कर दूंगा, कल तो मैं इतने कॉल्स कर लूंगी, एंड देन जब वो कॉल्स नहीं कर पाते या कुछ और फायर फाइटिंग करने में लग जाते हैं और वो नहीं होता है तो वो मायूस हो जाते हैं। सी, अगर आप अपनी प्लेट पे अपने पॉसिबिलिटी से ज्यादा खाना रखेंगे तो बहुत चांस है कि आप वो खाना नहीं डाइजेस्ट कर पाओ। सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको इसको अच्छे से देखना चाहिए, अपने लेवल से लेके स्टाफ लेवल तक और कस्टमर लेवल तक, कि आप खुद से कितनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, स्टाफ से और कस्टमर्स से भी। स्किल्स एंड टैलेंट इश्यूज, बहुत बार मैंने देखा है कि हमारा जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी झिक झिक है, बहुत सारे काम नहीं पूरे होने के रीजंस है, वो इसलिए है कि स्किल नहीं है। हमारे पास भी शायद स्किल नहीं है वो बेटर कम्युनिकेशन का, और उनके पास भी वो स्किल नहीं है बेटर अंडरस्टैंडिंग का, उनके पास वो टैलेंट ही नहीं है। अगर आपके पास वो टैलेंट नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट उतनी बेटर नहीं होगी। अगर आपने सस्ता टैलेंट चूज किया अपनी वेबसाइट के लिए या अपनी, तो वो वैसा ही रिजल्ट देगा। अगर आप सोच रहे हो कि कोई आपका काम फ्री में कर दे या बहुत सस्ते में कर दे, तो वो टैलेंट इश्यू आपके पास आ सकता है। इसके लिए आपकी रिसर्च स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप 5 लोगों से मिलो, बेस्ट में बेस्ट जो काम कर रहे हैं, महंगे से महंगा उससे भी मिलो, सस्ते से सस्ते से भी मिलो, देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कहाँ पे ये मैच हो रहा है। हर बार पैसा बचाना कहीं ना कहीं बड़ा इश्यू क्रिएट करता है, वो ग्रोथ को रोकता है। अभी फिलहाल तो आपने कुछ पैसे बचा लिए, बट जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है वो उसमें नहीं बैठते हैं। फोकस ऑन प्रोडक्ट एंड नॉट ऑन योर कस्टमर, फोकस ऑन प्रोडक्ट नॉट ऑन योर कस्टमर एक्सपीरियंस। ये बहुत बार प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि हम हर बार हमारी प्रोडक्ट के ऊपर जब हम बात भी करते हैं तो उनको बताते हैं कि अरे मेरा प्रोडक्ट का ये मटेरियल है, ये मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये भाव में ये मटेरियल नहीं मिलेगा आपको। उसको उसकी शादी में अच्छा लगना है, आपको प्राइस से ज्यादा आप वो शादी में कितने चमकोगे और कितना हटके आपको लगेगा। कम से कम 10 लोग आपको पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से बनाया है, ये जरूरी है। उसके लिए जैसे डव सोप की एड देखी आपने, उसमें खास वो बताते थे कि I feel like I really don't have time। एक मोटी सी आंटी कोई भी दिखाते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो होम में थोड़े से फैटी होम मेकर्स हैं जो अपना खुद का ध्यान नहीं रख सकते, और जो उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, अब मैं अपने पति को पसंद नहीं हूँ, अब मेरा रूप वैसा नहीं रहा जितना पहले मैं अट्रैक्टिव थी। कस्टमर्स को फोकस करके उन्होंने ये एड बनाई थी कि ये लोग हमारे इतना महंगा सोप, तब जो कॉस्ट था वो, क्योंकि तब एक एकदम एवरेज लिरिल जैसा सोप से ये कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, तो वो एक्सपीरियंस उनको देना कि ये वाव कर देगा आपके घर में, आपकी फैमिली की नजर में, और आपको सॉफ्ट फील होगा, आपकी स्किन यंग दिखेगी। इज इट लव और इज इट डव, if you remember that। तो ये कस्टमर एक्सपीरियंस आती, इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कॉस्ट और व्हाट इज योर प्रोडक्ट, इट इज अबाउट हाउ यू मेक देम फील, हाउ दैट प्रोडक्ट इज गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर देम, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सो टॉक ऑन कि मेरा प्रोडक्ट आपकी लाइफ में क्या कमाल करेगा, मेरा कोर्स करने से आपका बच्चा कैसे जीनियस बनेगा। It is all about this।
each decision taking time and lots of energy. जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे मैंने कहा 35,000 डिसीजंस हम हर रोज लेते हैं, हर रोज हम इतने सारे डिसीजंस लेते हैं, और हर डिसीजन थोड़ा टाइम लेता है और बहुत सारी एनर्जी लेता है. तो ये जब डिसीजन हर बार हमको लेने पड़ते हैं, तो हर बार हम अपना थोड़ा सा टाइम उसमें दे देते हैं. जबकि सिस्टम प्रोसेसेस आ जाएंगे तो आपका ये बहुत सारा टाइम और एनर्जी बच जाएगा. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो इस सारी बातों के लिए सिस्टम्स एंड प्रोसेस जरूरी है. जैसे आप अपने कस्टमर्स को बताते हैं कि क्यों मेरा प्रोडक्ट जरूरी है, तो कुछ ना कुछ मैं वही कर रही हूँ. क्यों सिस्टम्स और प्रोसेसेस जरूरी है वो मैंने बताया. अब सिस्टम्स और प्रोसेसेस को इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं? जब बिजनेस में सब कुछ ठीक है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ उसी चीज को एक प्रोसेस बना दो. अब प्रोसेस मतलब इतनी बात नहीं है आप सोचते हो. हम सुबह उठते हैं तो हमारा एक फिक्स रूटीन होता है. हम वॉशरूम यूज करते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, हम कपड़ा पहनते हैं, हम ऑफिस जाते हैं. एक ये फिक्स है. अब ये सिस्टम हो गया, एक प्रोसेस कंटिन्यूस हो रहा है, एवरी डे हो रहा है. अब यहाँ पे इश्यू कहाँ पे आता है? वही टाइम पे दो लोगों को बाथरूम में जाना है नहाने के लिए और चिक चिक होती है. अगर आपके पास टाइम शेड्यूल है कि ये 7 बजे जाएंगे, 7:30 बजे, आई नो इट इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल टू गो थ्रू, बट आई जस्ट वांट टू कन्वे कि कितना सिंपल है सिस्टम्स और प्रोसेस को आपकी लाइफ में लाना. अगर आपको हर एक आपके घर के लोगों का सिस्टम पता है, टाइम शेड्यूल पता है, तो हाउ इजी इट इज टू बी फॉर यू टू यूज एवरीवन्स टाइम नाइसली. फिर कोई इंतजार नहीं कर रहा है कि ये प्रॉब्लम अगर इसका टाइम खत्म हो तो मैं इससे बात करूं. उसको है कि इसकी मीटिंग आज, लाइक मुझे पता है कि मेरी मीटिंग 4 बजे के बाद खत्म होगी, तो आई विल आस्क समवन. प्रोसेस और सिस्टम है. सिर्फ आपको बिजनेस का भी छोटा प्रोफेशन हो, आपको हर चीज में सिस्टम और प्रोसेस लाना है. इतना छोटा कि समझो आपको अगर कस्टमर का कॉल आता है, इट कैन बी आप मेडिकल प्रोफेशन में और आपको एक कॉल आ रहा है प्रोस्पेक्टिव कस्टमर का, तो वो जो बात आप करेंगे उसका भी एक सिस्टम होना चाहिए, उसका भी एक प्रोसेस होना चाहिए. आप फोन उठाएंगे, पहले उनसे पूछेंगे, आपको डेटा जितना कलेक्ट करना है वो पूछेंगे, फिर उसको टाइम देंगे. उसके बीच में वॉइस इज स्टिल नॉट प्रॉपर. ओके, so I'm so sorry for apologize for this problem, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क इश्यूज चल रहे हैं. I'm so sorry. Bear with me today. Next time I will pay attention that this problem is solved. But right now my Jio network is giving me problems. So please bear with me. When things go right in business, make that a process. जब भी कुछ right हुआ तो उसको प्रोसेस बना लीजिए. जब कुछ आपके बिजनेस में राइट हो रहा है तो उसको प्रोसेस बना लीजिए. शुड आई कंटिन्यू? मीना, हाँ, लेट्स सी. 15-20 मिनट देखिए कैसे क्या हो रहा है. बहुत जा रहा है क्या आवाज? I don't know that. Actually the participants will only able to tell me that voice कितना crack हो रहा है. Ma'am, multiple times only half the sentence is understood. The other half we are assuming it should be this. Oh, okay. You might want to keep your video off to use less bandwidth if the network is low already. Okay. Let's see if I hope this 5 to works. 10 minutes. Let's see. Okay. Do let me know if the thing is working. And I really am sorry for this.
सो व्हेन थिंग्स गो राइट इन बिजनेस, जब सब ठीक चल रहा है बिजनेस में, उस हर चीज को आप प्रोसेस में कन्वर्ट कर सकते हो. जैसे हर बार जो बेटर कम्युनिकेशन आता है, मतलब आपके कस्टमर से कभी भी कंप्लेन नहीं आई कि पता नहीं आपका स्टाफ कितनी बेदरकारी से बात करता है, आप तक मेरा मैसेज पहुंचा भी है कि नहीं. अगर ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आ रही है, मतलब हर चीज का एक सिस्टम होना चाहिए. वो फोन उठाएंगे, क्या पूछेंगे, क्या बात करेंगे, कौन सी डायरी में आपका टाइम चेक करेंगे. इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो सकते हैं. सो जब भी कुछ राइट कर रहे हो आप बिजनेस में, तुरंत उसको प्रोसेस में कन्वर्ट कर दो. और जब बिजनेस में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, डेफिनेटली वहां पे आपका चेक जरूरी है. इट कैन बी इवन मार्केटिंग. अगर कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं तो वहां पे भी सिस्टम्स और प्रोसेस का फेल हो सकता है. कि ऐसा क्या है कि जहां पे आप अप्रोच कर रहे हो, बट कौन सी 3 बातें आप बताना भूल जाते हो, या कौन सी 3 बातें हैं जो आपके उनके साथ, कस्टमर के साथ डायरेक्ट बात हो, उससे पहले उन तक पहुंचनी जरूरी है. जैसे कि आपका प्रोफाइल, ब्रोशर्स, और क्या चीजें हैं जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, आप खुद उनसे बात करें उससे पहले, ताकि उनका माइंड रेडी हो आपसे बात करने के लिए. बहुत बार ऐसा होता है कि हम राइट कम्युनिकेशन ऐसे होता है कि अगर जमीन रेडी नहीं है और हम कुछ बोल रहे हैं तो वो फल नहीं देगा. मतलब अगर जमीन रेडी नहीं है और हम सीड्स फेंक देते हैं तो वहां पे कुछ ग्रो नहीं होगा. तो पहले कस्टमर का माइंड रेडी करना पड़ता है. वो भी एक सिस्टम का पार्ट है कि नहीं, जिसको हम प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं, जिसको हम आगे जाके कैसे इस कस्टमर को प्लान ए बी कितना पहले भेजना है हमें मटेरियल, समझाने के लिए कि हमारी कंपनी कौन से लेवल पे है, और फिर बात करें. ये सारी बातें सिस्टम्स और प्रोसेसेस में अगर नहीं है तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे. Systems are created so results are measured, quantify and qualify. हर बार बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट राइट क्वांटिटी में निकले और मेजर्ड होके निकले, वो बहुत जरूरी है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. और इस चीज के लिए हमें सिस्टम और प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है. सिस्टम्स क्या करेंगे आपके लिए? सिस्टम्स आपके लिए करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बातें, आपकी 4 बातें, स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी और मनी को सेव करेंगे. सिस्टम इज सेव योरसेल्फ स्ट्रेस, टाइम, एनर्जी एंड मनी. आपका टाइम, एनर्जी, मनी, स्ट्रेस सेव करेगा अगर आपके पास सिस्टम है. कोई आपके पास दौड़ के नहीं आएगा बताने के लिए कि अब मैं क्या करूं. कोई आपके पास पूछने के लिए नहीं आएगा कि अब मैं क्या करूं. सो बेसिकली ये बहुत जरूरी है कि आप अपना टाइम बचाएं, अपनी एनर्जी बचाएं, अपना फोकस किसी और चीज में न डाल के बिजनेस ग्रोथ में लगा पाए. इसलिए सिस्टम्स जरूरी है. हर बार अच्छा सेम प्रोडक्ट आपके सामने आए, इसलिए सिस्टम जरूरी है. हम इतने छोटे घर में भी सिस्टम्स रखते हैं. हमारे अगर कोई फीमेल है तो वो बहुत इजीली समझ पाएंगे कि हमारे पास शुगर और चाय पत्ती का भी नाप रहता है. इतनी चाय पत्ती डालनी ना, शुगर डालना है, और ऐसे बनती है. के लिए 1 कप दूध डालना है. इट इज दिस सिंपल. कितना मटेरियल कितना हम डाल रहे हैं उसका एक फिक्स माप नहीं हुआ तो उतना उतना लॉस होता है, और उतना उतना लॉस आगे जाके बढ़ जाता है. अगर आपका जो मेजरमेंट है वो ठीक नहीं है तो हर बार सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट निकलना मुश्किल है. सो इसलिए सिस्टम का होना जरूरी है. अब ये इंसानों पर भी इतना ही लागू पड़ता है. अभी मैं प्रोडक्ट की बातें कर रही हूँ, बट अगर सिस्टम हुआ तो हर बार वो बंदा सेम रिजल्ट देगा आपको. इसके लिए भी सिस्टम काम करता है, क्योंकि अदरवाइज अगर उसका मूड खराब है तो उस दिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम होगी. हम ये नहीं चाहते, इसलिए सिस्टम जरूरी है. क्योंकि अगर आप 35,000 डिसीजंस ले रहे हैं तो वो भी इंसान 35,000 डिसीजंस ले रहा है, और इतने डिसीजन वो अपने इंटेलिजेंस लेवल पे, अपनी कैपेबिलिटी पे, अपने सराउंडिंग के हिसाब से ले रहा है. तो आप सोचिए कितने वेरिएबल्स हो जाएंगे. एक आपका डिसीजन गलत हुआ, उसका भी गलत हुआ, तो अल्टीमेटली कंपनी सफर करेगी. सो इतने सारे डिसीजंस गलत ना हो
उसके लिए बेटर है कि एक सिस्टम क्रिएट की जाए, हर किसी को यही सिस्टम फॉलो करनी है, वेदर यू आर इन गुड मूड, वेदर यू आर लेट, वेदर यू आर अर्ली, वेदर यू आर वेरी सिंसियर और वेदर यू आर वेरी स्टूपिड, तो भी आपको पता है कि आपको ऐसे ही काम करना है. यू जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन. इसलिए सिस्टम्स जरूरी है. तो आपकी बहुत सारे रिसोर्सेस की बहुत अच्छी बचत हो सकती है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सिस्टम्स मतलब क्या? सिस्टम्स मतलब इंप्रूव्ड एफिशिएंसी, अ सेट ऑफ प्रोसेस. जैसे मैंने कहा कि सिंपल चीजें हैं, मैंने फोन उठाया, वहां से उन्होंने आया कि मुझे ये डॉक्टर से बात करनी है या मुझे ये इंश्योरेंस लेना है, इसके लिए इनसे बात करनी है. सिंपल प्रोसेस है. पहले आप नाम बताइए, पहले आप कहाँ से बात कर रहे हैं, इससे आपका कस्टमर डेटा तैयार होगा. आप आगे जाके इससे अपना कस्टमर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि जनरली कैसे टाइप के लोग हैं जो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं और ये जनरली प्रोडक्ट लेना पसंद करते हैं. तो ये एक आपका कस्टमर बेस के लिए भी ये प्रोसेस जरूरी है. सिंपल फोन आया, आप उसको ईमेल भेजेंगे, थैंक यू फॉर योर क्वायरी. तो ये जो सब बातें हैं, ये बातों की एक सिस्टम होनी चाहिए. अगर वो मैसेज, वो ईमेल नहीं है वहां, तो एक लूप होल क्रिएट हुआ, वो बातें सिर्फ ओरल रह गई. अब ये बात आपको आपका स्टाफ कितना जल्दी, कितना लेट, कितना एफिशिएंटली बताता है, उसके ऊपर आपकी आगे की प्रोसेस शुरू होगी. सेट ऑफ प्रोसेसेस होना इसीलिए जरूरी है. और हर छोटी बात के लिए, हर छोटे के लिए, अगर आपका किसी भी छोटी से छोटी बात में आपका माल लेट जा है, तो भी वहां पे मैसेज पहुंचना चाहिए, हमने ये टाइम आपको बताया था, ये बदले ये माल पहुंचेगा. ये एक जिससे आप देख सकते हैं कि अभी आपका माल, कस्टमर कहीं नहीं जाएगा. गिव मी अ मिनट. थोड़ा ब्रेक हो रहा है आवाज. ओके ओके ओके, लेट मी गेट हेल्प. Just 1 minute break. Yeah, sure, Carrie. Camera off.
Hello. हाँ मीनल. I'm back. So Yeah, I yeah. hope that we'll be able to talk. आगे की previous slide कीजिए. Okay. So systems हमारा टाइम बचाती है, हमारा स्ट्रेस लेवल बचाती है, हमारी एनर्जी बचाती है और हमारे पैसे बचाती है. It's as simple as that. जितनी systems को हम ज्यादा अपने हर डेली जो कम से कम बहुत सारे मैकेनिज्म्स हमारे ऑफिसेस में होते हैं, या हमारे इवन इफ इट इज अ स्मॉल स्केल बिजनेस, इवन इफ इट, बहुत बार मैंने सुना है कि मेरा तो बिजनेस ऐसा है ना कि वो आर्ट के ऊपर बेस्ड है, तो फिर इसमें मैं कैसे सिस्टम्स ले आऊं. हर चीज में सिस्टम पॉसिबल है, हर चीज में सिस्टम पॉसिबल है. जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हम कस्टमर को कॉल कर रहे हैं, तो वो कस्टमर कॉल आया, उसके साथ थैंक यू मैम फॉर कॉलिंग के पहले का जितना भी प्रोसीजर है, आपका नाम बताइए और उनको ईमेल जाना चाहिए कि हाँ आपने हमें अप्रोच किया है, दिस इज योर इंक्वायरी, आपको ये प्रोडक्ट्स के बारे में इंक्वायरी है, थैंक यू फॉर दिस. उसको अगर आपके तरफ से कोई वैल्यू जानी चाहिए तो वो वैल्यू पहुंचे, उसका ईमेल. ये जो सारी बातें हैं, हर एक में ये बहुत वेरिड होगा, बहुत अलग होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. बट हर सिस्टम का एक चीज का एक प्रोसेस बनना चाहिए. हर उसमें आप टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है. जैसे एक सिंपल गूगल फॉर्म है, एक गूगल फॉर्म आपको हर चीज सिंपल, हर कोई एक ही गूगल फॉर्म भरेगा, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रहा है. अगर आपने सॉर्ट किया तो वो नाम अल्फाबेट वाइज सॉर्ट करके आपको दे रहा है. सो आपके लिए वो डेटा संभालना इजी हो गया. ऐसे ही और सब एक जगह पे आपके पास ईमेल है, तो जब नेक्स्ट टाइम आपको अप्रोच करना है तो आप इजीली अप्रोच कर पाओगे. इतना ही सिंपल होता है हर चीज को ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज करना. Systems are going to improve your efficiency, and even if you are not there, system will always work. आप नहीं भी हो तो आपके systems आपके बिना भी चालू रह सकती हैं. आप अगर किसी और बड़े प्रोडक्ट के बारे में या बड़ा डिसीजन लेने के लिए 5 दिन भी ऑफिस में नहीं है, तो आपके बिना भी आपकी फैक्ट्री एक बेयर मिनिमल जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसके अलावा कंप्लीटली फंक्शनल होनी चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं तो अपना बिजनेस छोड़ ही नहीं सकता. अगर ऐसा ही सोचे तो ना मुकेश अंबानी, ना बड़े बड़े लोग हैं जो दिलीप संघवी, अगर वो बैठ के ही सोचे कि नहीं मेरा स्टाफ तो टाइम पे आएगा ही नहीं अगर मैं नहीं हूं, तो वो तो बहुत टाइम पास करेंगे, तो क्या वो लेवल पे जा पाएंगे? क्या वो इतनी बड़ी फार्मा कंपनी बना पाएंगे? अगर लोग सोचे कि हमें बैठना जरूरी है, तो क्या 36,000 प्लस मैकडोनल्ड्स के आउटलेट बन पाते? अगर हर जगह पे इतनी कंट्रीज में अगर उन्हें इतने सारे आउटलेट्स बनाने हैं जहां पे हर बार मैक टिक्की सेम तरह की आपके पास आती है, तो अगर वो ये चीजों को नहीं ध्यान में रखते तो क्या हर बार सेम चीज आपको मिलती और इतने सारे आउटलेट वो बना पाते? तो जब आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हो तो आपको छोटे से छोटा प्रोसेस भी आपको सिस्टमैटिक करना पड़ेगा और उसको आपको सिस्टम में डालना पड़ेगा. ये स्ट्रेटेजी बेस्ड हो सकता है, ऊपर से नीचे आ सकता है, मतलब स्ट्रेटेजी आप जो डिसाइड करते हो और वहां से आ सकता है, और प्रोसेस नीचे से भी आ सकता है जहां पे स्टाफ जो काम कर रहा है वही बनाता है प्रोसेस, आपसे अप्रूवल लेता है और वो प्रोसेस फिर आगे जाके कितना मॉडिफाई होता है. समझो एक इंसान आया आपकी बिल्डिंग में, एक वॉचमैन होता है, उसको पता है कैसे एक इंसान आ रहा है, उसका टेम्परेचर लेना है, उसका नाम नंबर लेना है, उसका टेम्परेचर के साथ उसको कितना सैनिटाइजर देना है, कहाँ से उसको बोलना है कि यहाँ से कितने वक्त के लिए आप आए हो, आपका व्हीकल कहाँ पे पार्क किया है. ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो उसको आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये सारी चीजें तुझे चेक करने के बाद ही ऊपर भेजना है. नहीं तो फिर चिक चिक चालू है, किसकी कार यहाँ पे पड़ी है किसी को पता नहीं, एंड देयर इज अ नॉइस. अगर आपको पता है कि
किसी बिल्डिंग में सेफ नहीं हुआ क्योंकि उसने टेम्परेचर ही नहीं लिया था, और बिल्डिंग में कोई ऐसा आ गया जिसके वजह से कोरोना फैल गया। सो ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट कि आप उसको वो पूरा मैकेनिज्म बताए कि भाई यहाँ पे तुझे टेम्परेचर भरना है, यहाँ पे कार कहाँ पे पार्क हुई है भरना है। इतनी छोटी बात अगर एक बार वो भर लेगा और वो इंसान चला गया तो आपके पास पूरा डेटा अवेलेबल है। ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी है। आप देखते हो जब आपके पास वॉशिंग मशीन आता है तो उसके साथ कितनी बड़ी मैन्युअल आती है, उस मैन्युअल में हर चीज लिखी होती है। अगर आपका बंद भी हो गया वॉशिंग मशीन तो उसमें आता है कि अगर ये प्रॉब्लम होगा तो ये होगा, ये प्रॉब्लम होगा तो ये सोल्यूशन होगा। हम हालांकि ज्यादातर मैन्युअल पढ़ते नहीं है, बट अगर आप सिंसियरली हर एक मैन्युअल को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी इन डेप्थ उन लोगों ने छोटी से छोटी बात को बताया है। कलर कपड़ों के लिए अलग है, टेम्परेचर के लिए अलग है वॉशिंग मशीन। तो ऐसे ही हमें अपने कंपनी में, कितनी भी छोटी कंपनी क्यों ना हो, उसमें यही बातें हमको अप्लाई करनी है। कितनी भी छोटी हो हमें ऐसे ही अप्लाई करते जाना है। सिस्टम्स आर अ सेट ऑफ प्रोसेस, पीपल, technologies and interfaces. When we put them together, it's a system in our business. अब कैसे होता है, एक प्रोसेस हम बनाते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद यहाँ पे जाएगा प्रोडक्ट, फाइनल पैकेजिंग में जाएगा और यहाँ से डिस्पैच होगा। पहले कॉल आएगा, उसके साथ मीटिंग अटेंड होगी, उसको हम अपने प्रोडक्ट समझाएंगे, प्रोडक्ट समझाने के बाद उसको हम अपने ब्रोशर्स वगैरह देंगे, अपने फिक्स टाइम पे हम उनको कॉल बैक करेंगे, फॉलो अप करेंगे, और फॉलो अप के बाद या तो वो फिक्स होगा या फीडबैक मिलेगा, या वो कस्टमर कंफर्म होगा या फीडबैक मिलेगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है, ये एक प्रोसेस होता है। उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं वो भी फिक्स होने चाहिए, नहीं तो पता चलता है कि जैसे हम गुजराती में खो खेलते हैं, वो उसके ऊपर ब्लेम डालता है, वो उसके ऊपर ब्लेम डालता है, अल्टीमेटली पता नहीं किसने क्या गड़बड़ की है, कौन से स्टेज पे गड़बड़ हुई वही नहीं पता चलते। तो सारे जो लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं वो भी वहां पे इन्वॉल्व लिखा हुआ होना चाहिए। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी वो भी वहां पे लिखा होना चाहिए, और कौन से दो एरियाज मिक्स होंगे। समझो कभी कोई ऐसा है जहां पे फाइनेंस और एडमिन दोनों को बातें करनी है, तो फाइनेंस और एडमिन कौन से जब बात करेंगे तो दोनों मिलके वो प्रोसेस बनेगा, क्योंकि यहाँ से वो फाइनेंस के पास जाना है, एडमिन का काम खत्म होगा, वहां से वो फाइनेंस के पास जाने वाला है। तो फिर वहां पे कौन है जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है वो हमें देखना चाहिए। ऐसे सारे सब साथ में हम लिख लेते हैं तो वो एक सिस्टम बन जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मुझे पता है ज्यादातर आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अच्छे से ये सिस्टम्स को ऑलरेडी अप्लाई किया होगा, बट अब आप अगर अपने बिजनेस को फिर से देखेंगे आपको और बहुत जगह पे सिस्टम अप्लाई कर सकते हो, वो भी दिखेगा जहां पे आपका टाइम जाता है। अब आप देखोगे कि सबसे ज्यादा मुझे स्टाफ कब बुलाता है, सबसे ज्यादा कब ऐसा होता है कि मेरा कन्वर्जन नहीं होता है, वहां पे आप देखोगे कि सिस्टम की जरूरत है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस इज अ सेट ऑफ स्टेप्स दैट वी नीड टू हैव फॉर एनीथिंग वी आर रिपीटिंग मोर देन वंस। जैसे मैंने कहा चाय हम रोज बनाते हैं, जो भी चीज हम रोज करते हैं उसके लिए एक प्रोसेस होना चाहिए। इवन आपका अगर ऑफिस का जो क्लीनिंग पार्ट है उसके लिए भी बहुत सारे प्रोसेसेस बन सकते हैं। जो आपका हाउस कीपिंग है उसको भी बार बार कितना टाइम आपका वो प्रोडक्ट चलना चाहिए। अगर एक आपने उसको क्लीनिंग बॉटल दी है तो वो क्लीनिंग साबुन की बोतल कितना चलना चाहिए वो अगर उसको पता है तो वो कभी वो रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे। अगर वो रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे और हर बार आपको सेम रिजल्ट दिख रहा है, मतलब ये सिस्टम ठीक से काम कर रही है। अगर उसने बोला कि नहीं खत्म झाला आता मी काय करूं, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं प्रोसेस में ठीक नहीं है, या तो वो ज्यादा यूज कर रहा है, वो एक कम यूज कर रहा है, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे। तो बार बार आपको वो नहीं देखना पड़ेगा कि वो आके बोलेगा और आप बोलोगे क्या करते हो, इतना सब वेस्ट कैसे कर जाते हो, कहाँ पे गया प्रॉब्लम। तो स्टेप ऑफ इफेक्टिवनेस, हर प्रोडक्ट को, हर रिसोर्सेज को, हर स्टेप को कितना इफेक्टिव बना सकते हो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
अभी से आपका माइंड चर्न होना शुरू होना चाहिए कि मैं कहाँ कहाँ पे अपने जो नॉर्मल है, इवन इफ इट इज 1 or 2 staff or 3 staff company, then also there are so many SOPs that can be created. So please focus on SOPs. Sequence मतलब what, क्या क्या इवेंट्स हैं जो आपको लिखने हैं दिन में। आप ओपन करते हो, आपकी शॉप ओपन करते हो या आपका काम शुरू करते हो, वहां से कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, हाउ एंड व्हेन दे विल हैपन, व्हाट टेक्नोलॉजीज यू विल यूज। हर बार सिर्फ कंप्यूटर नहीं होता है, और भी बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के अलावा भी लगती हैं, और कभी कंप्यूटर के अंदर भी नई चीजें ऐड होती है। तो व्हाट टेक्नोलॉजीज यू विल यूज, व्हाट पीपल नीड टू गेट इन्वॉल्व, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नहीं तो हर बार आप तो आ ही जाओगे फ्री में एजुकेशनल सिस्टम देने के लिए, फ्री में उनको एजुकेशन देने के लिए। अगर वही 4 लोगों का काम है तो उसी 4 लोगों को करने दो। आप हर बार अगर आओगे वहां पे तो आपको आपकी आवरली वैल्यू पता है, आपकी आवरली वैल्यू अगर वहां पे वेस्ट हो रही है तो आपका काम सफर कर रहा है, और वो सिर्फ आपका फॉल्ट है। हु इज अकाउंटेबल, बहुत जरूरी है कि आप कौन जिम्मेदार है उसका नाम, मतलब आप सिर्फ अकाउंटेबल पर्सन के साथ बात करोगे, आप बाकी किसी लोगों के साथ बात नहीं करोगे। अगर किसी ने फोन करके आपको बोला कि माल नहीं मिल रहा है, माल नहीं आया है, तो आप सिर्फ उस बंदे से बात करोगे जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पूरे स्टाफ के साथ बात नहीं करोगे। एंड व्हाट आर द इंटरफेसेस where they touch other systems और डिपार्टमेंट्स, जैसे कि मैंने कहा कि एडमिन और फाइनेंस को टच करना है, या एडमिन और डिस्पैच को टच करना है, या जहां पे एडमिन इंस्ट्रक्शन देगा डिस्पैच वाले को, या जहां पे प्रोडक्शन वाला इंफॉर्मेशन देगा एडमिन को। तो ऐसे जहां पे भी ये सब सीक्वेंस में मेजरेबल होना चाहिए। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। लॉकडाउन स्टेप्स, जो भी स्टेप्स आपने तय किए हैं उसको पहले लॉकडाउन कीजिए। एकदम सिंपल है, प्रोसेस बनाना बहुत ही सिंपल है। पहले लॉकडाउन कीजिए कि हाँ भाई, जैसे मैंने कहा वॉचमैन का सेम एग्जांपल रखते हैं, इतनी सारी बातें तुझे चेक करनी है। अगर कोई आता है तो कौन से फ्लोर पे जाएगा, कौन से इसमें जाएगा, क्या उसकी कार कहाँ पे पार्क है, टेम्परेचर लेना है, उसको बोलना है वहां से हैंड सैनिटाइजर ले, मास्क पहना है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करनी है। तो ये सारे स्टेप्स लॉकडाउन हो गए। अब आगे जाके पता चला कि अरे ये भी एक ऐड करना चाहिए, क्योंकि आजकल ये बहुत जरूरी है। तो वहां पे आप ऐड कर सकते हो या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो कि अभी ये प्रॉब्लम निकल गया है, तो अभी ये चेक नहीं भी किया तो चलेगा। जहां पे आपको पता चल गया कि भाई पार्किंग के लिए अलग ही एरिया है, वहां पे वो लोग लिख रहे हैं तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पे सीधा फोन करके प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पे एक माइनस या सब्ट्रैक्ट हो सकता है, या ऐड भी हो सकता है उसकी इफेक्टिवनेस के लिए। आगे है क्रिएट एसओपी। जितने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप बना सकते हो आपको बनाने चाहिए, और इतने ही सिंपल होते हैं। ये लो, उसके बाद इसको यहाँ पे रखो, इतना मेजर करके इसमें से ये मिक्स करो, इट इज दैट सिंपल। इसको फोन करो, इसको मेल करो, मेल का रिवर्ट आता है तो यहाँ पे ऐड करो, ये सिस्टम में अंदर दिखना चाहिए। इनसे जो फोन पे बात हुई है वो कितना कम्युनिकेशन है, प्रीवियस सारा कम्युनिकेशन आपको दिखना चाहिए। अल्टीमेटली जब आप वो कस्टमर के बारे में जानना चाहो तो एक पेपर के ऊपर आपको आगे का पूरा, एक स्क्रीन के ऊपर आगे का पूरा कम्युनिकेशन आपको दिखना चाहिए। 1 साल के पहले भी अगर उसने आपसे प्रोडक्ट लिया है तो उसने क्या रिव्यूज दिए थे वो भी अगर आपको दिख रहे हैं, तो सोचिए आप उससे कितनी अच्छे से बात कर रहे सकेंगे कि अरे તમે ત્યારે આ પ્રોડક્ટ લીધું તો એનું તમને શું ફાયદો થયો છે, इज इट शोइंग रिजल्ट्स। ये ऐसे एसओपीज इसलिए जरूरी है कि हर चीज आपके पास ऑन द रिकॉर्ड्स है, ऑन द पेपर्स है। फाइंड अ वे टू मेजर आउटकम्स फॉर एवरीथिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए केपीआई होते हैं। मैं नेक्स्ट अपने जो ग्रुप है उस पे सैंपल केपीआईज और सैंपल एसओपीज डालूंगी, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा। क्योंकि बिजनेस इतने वेरिड है, क्योंकि एक छोटे एक लोग, एक सिर्फ प्रोफेशन से लेकर बड़े से बड़ी कंपनी वाले हमारे पास यहाँ पे है, इसलिए हम उस हिसाब से बात कर रहे हैं कि कुछ
एग्जाम्पल्स मैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के डालूंगी, जिससे आपको पता चलेगा, प्लीज नेक्स्ट स्लाइड, जिससे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे आप चेक करेंगे कि एंड रिजल्ट क्या है, एंड आउटकम अगर सेम मिल रहा है, जैसे वो मैकडोनल्ड्स वाले को अगर आपको विद इन दिस टाइम फ्रेम मैक टिक्की रेडी करके मिल रही है और एक कस्टमर सिर्फ 3 मिनट से ज्यादा आपके काउंटर पे नहीं खड़ा है, इट मीन्स योर सिस्टम इज वर्किंग। ऐसे आउटकम, हर जगह पे आउटकम क्या आ रहा है, अगर वो फिक्स है तो फिर आपको वो सिस्टम आपके लिए वर्क कर रहा है। हर चीज का आउटकम मेजर हो सकता है। एक इंसान की परफॉर्मेंस का भी आउटकम मेजर होता है। आपको 1 या 2 या 1 वीक लग सकता है, बट आपको हर इंसान से लेके हर मशीन तक का आउटकम लिखना है बैठ के। KPI की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, मतलब आपको पता चलेगा कि या क्या ये अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स से आपको पता चलेगा कि आपका जो क्राइटेरिया है, जो कंसिस्टेंसी है और जो क्वालिटी है, वो तीनों मेंटेन हो रही है कि नहीं। और अगर वो तीनों मेंटेन हो रही है, मतलब आपका सिस्टम और प्रोसेस राइट काम कर रहा है। अब आप रहो कि ना रहो, आपको सिर्फ KPI देखना है और आपको पता चल जाएगा कि आपका काम कैसे चल रहा है। नेक्स्ट, असाइनमेंट। आज सबसे बड़ा काम अगर आप कुछ करोगे तो स्वॉट एनालिसिस करोगे, खुद का और आपके बिजनेस का। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आज ही आप ये काम करो। जितने छोटे से छोटे एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स आपको लगते हैं, या छोटे से छोटे फाइनेंस के रिलेटेड, प्रोसेस के रिलेटेड, सिस्टम्स के रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम्स लग रहे हैं, तो आप उसको किसी कैटेगरी में डालिए, वेदर इट इज वीकनेस और थ्रेट, कौन से लेवल पे है वो, और उसके हिसाब से आप अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में अब ये जो स्वॉट एनालिसिस है और SOP आपने जो बनाए हैं, उसका इफेक्टिवनेस कितना हो रहा है वो हम चेक करेंगे। इस बार ये वीक अगर आप हर प्रोसेस का SOP बनाएंगे, अब तक जो बने हुए हैं वो तो है ही, जो नहीं बने हुए उसमें भी बहुत सारे प्रोसेस ऐसे होंगे जिसके SOP आप बना सकते हैं। तो प्लीज क्रिएट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, मतलब आप स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाइए, कौन सी सीक्वेंस में वो जाएगा वो लिखिए, ये बहुत जरूरी है। आप अपने सिर्फ मेन 5 टास्क के लिए भी लिख दिए। अगर आपने बहुत छोटी कंपनी है और अब तक आप SOPs नहीं लिख रहे हैं, तो सिर्फ आपके मेन 5 टास्क के लिए भी आपने SOPs लिख दिए, तो आपका परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाएगा, इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी। क्रिएट आउटकम चेकिंग KPI। अब ये जब आप देखेंगे सैंपल तो आपको ज्यादा पता चलेगा इसके बारे में। अगर आप ज्यादा रिसर्च करेंगे तो आप जान पाएंगे कि हर बार परफॉर्मेंस चेक करने का आपका इंडिकेटर फिक्स होना चाहिए। अगर हैप्पी कस्टमर है तो आपका परफॉर्मेंस परफेक्ट जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है। ये तीनों असाइनमेंट आप कर लीजिए और आप देखेंगे कि आपकी इफेक्टिवनेस बहुत बढ़ जाएगी, आपका कंटिन्यूअस सेम प्रोडक्ट हर बार बाहर आएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क ऑन द ग्रुप्स, लक्ष्य ग्रुप। Nisha ji, over to you. Yes, Minal. If they have any question, they can share. थैंक यू मिनल, थैंक यू वेरी मच। आज बहुत ही प्रॉब्लम था जियो नेटवर्क का। कल तो पूरा दिन नेटवर्क बंद ही था और आज नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम था, लेकिन थैंक गॉड ये जो 1.5 आवर्स बहुत अच्छे गए। और होप यू ऑल एंजॉय द सेशन। और आप सब आपके फीडबैक, कुछ भी नॉर्मल, जो भी आपको कुछ भी पूछना है तो फ्री टू ask the Minal in the group. And anything else, Minal? No. Very good session today. Very good. Yeah. Nisha Was Ben and Meera Ben? Minal ji. Very nice. Ila. Acha, Ila Ben, are you there? Yeah, Thank yeah, you, I'm there. Yeah. So. Excellent session. Lovely points. Ma'am is always there to support.
કેટલા વાગ્યા છે યુએસએ માં? It's 2:30 અરે in the night. તો મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી સંસ્થાના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી રાતના 2-2:30 વાગે આપણી સાથે જોડાયા છે આપણને મોટિવેટ કરવા. એટલે ઇટ્સ ઇનક્રેડિબલ. It's a pride to all of Meenal's us. sessions are very, very informative, very helpful, very practical tips. So thank you very much, Nisha Ben, for organizing such wonderful sessions. आपकी leadership है बस. So thank you very much all of you. Sayonara. फिर मिलेंगे. Bye. Bye.